See, our today's topic is first topic is signum function. जरा पहले समझिए क्या होता है सिग्नम फंक्शन. कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से एक फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, जरा समझना. हम फंक्शन सिग्नम फंक्शन को एफ एक्स इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे लिखते हैं सिग्नम एस जी एन ऑफ एक्स. हाउ वी डिफाइन इट? We define it. It is 1 when x is positive and 0 when x equal to 0, minus 1 when x is negative. Now see, by looking at this function, can we conclude that the domain is a set of real number? Domain क्या आ जाएगा इसका? R. R. Can you tell me the range? It has only 3 values. क्या क्या है? minus 1, 0 One. and 1. Okay. Now see, can we define alternatively my function signum x as modulus of x over x when x is not equals to 0 and it is equals to 0 when x equal to 0. Can we define like this? Why? Because you know the definition of modulus of x. It is equals to x when x is greater than or equal to 0. In fact, rather than because here x is not equal to 0, so I will be defining this way. Are you getting this beta? So अगर इसी को मैं extend करता हूँ तो what will happen? Because here x is not equal to 0, so there are only two possibilities. या तो x पॉजिटिव होगा या x नेगेटिव होगा. सो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस मॉडुलस अपनी वैल्यू बदल लेगा. यहाँ x अपॉन x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस x अपॉन x माइनस 1, यहाँ 0 जब x इक्वल टू 0. नाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट? ऑफ कोर्स वी कैन ड्रॉ इट. सपोज दिस इज योर x एक्सिस, this is y axis. Now see, suppose this is plus 1, this point, and this point is minus 1. Now see, at x equal to 0 the function takes value 0. This is 0, and when x is more than 0, so I put here the cavity, and then we have this line y equal to 1. Is it okay, beta? So why I am putting cavity? Because here 0 is not included. So similarly, we have this. Again, I put a cavity here. So y equal to minus 1. I hope now that this graph is clearly discontinuous. Can we say like that, beta? Please tell me. Haan ji, beta. Is it clear? Yes, sir. Okay, now, if I ask you, suppose my function is signum of x minus 1. So then how you will define it? Now see, how you define signum of x? You define it mod x over x when x is not equals to 0 and 0 when x is equals to 0. So signum of x minus 1 is same way we define modulus of x minus 1 over x minus 1 when x minus 1 is not equals to 0 and it is 0 when x minus 1 is 0. Can we extend the definition like this? Please tell me, beta. So we can define this as, now you know that modulus function changes its sign the point at which modulus is 0. तो 1 पे 0 आएगा तो 1 के राइट में modulus क्या आएगा? x minus 1 और यहाँ माइनस ऑफ x minus 1. अब यहाँ x अगर 1 नहीं है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है. अगर x मोर देन 1 होगा तो मॉडुलस क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा. अगर x आपका लेस देन 1 है तो क्या आ जाएगा बेटा? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir. माइनस 1 आ जाएगा एंड इट इज 0 when x is equals to 1. Now can we draw the graph of this as well? Please tell me.
How will define it? Make graph of this. देखिए ग्राफ शिफ्ट हो गया है एक तरीके से. अगर एक्स एक्सिस पे यहां पर मैं पॉइंट ले लेता हूं 1 और यहां ले लेता हूं मैं -1. ओके, नाउ सी, और यहां हमारी है +1 और यहां है हमारा -1. अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इसका ग्राफ मैं ड्रॉ करना चाहूं, 1 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो वी हैव दिस पॉइंट. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. अब 1 के राइट में फंक्शन ने वैल्यू क्या ली है, तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा इधर, और 1 पे यहाँ कैविटी आ जाएगी. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से ग्राफ आ रहा है. ओके, नाउ व्हाट अबाउट, अगर मान लीजिए अब x लेस देन 1 है तो फंक्शन ने क्या वैल्यू ली है, -1, तो ग्राफ कैसे जाएगा? यहाँ पे 1 पे कैविटी इधर आ जाएगी एंड दिस वे. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा, इज इट ओके? जल्दी बताइए बेटा. Yes, sir. Okay, so clearly the graph is discontinuous. Okay, now again if I extend the concept, suppose my function fx is signum of x square minus x minus 2. Can you tell me how you will define such type of function? अब इसको सिग्नम से हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिग्नम इसका है, तो देखिए इसको हम कैसे जज करेंगे? This is a quadratic expression. Can we factorize it? Please tell me, can we factorize it? Yes, sir. Okay. Now see, we can factorize like this, x minus 2 into x plus 1. Now, try to understand it. अगर आप बात कर रहे थे खाली सिग्नम ऑफ x की, तो ये ऐसे बिहेव कर रहा था. x होता था जब 1 होता था, जब x आपका क्या होता था, पॉजिटिव. -1 होता था जब x नेगेटिव होता था. 0 होता था जब x आपका 0 होता था. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. यही डेफिनेशन थी. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन स्कीम से देखना पड़ेगा कि ये दोनों एक्सप्रेशन, इनका प्रोडक्ट कहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है. नाउ लेट अस यूज द साइन स्कीम मेथड. अब इसके जीरोस क्या हैं, -1 है और 2 है. अब बताइए 2 के राइट में क्या आएगा, ये पॉजिटिव. इज इट ओके? यहां आएगा नेगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. हाँ जी बेटा. Yes, sir. तो इफ आई स्टार्ट डिफाइनिंग माई सिग्नम ऑफ दिस एक्सप्रेशन, कैन वी से दैट it has value 0 when x takes the value 2 and -1. Is that okay? Please do reply. हाँ जी बेटा, कह सकता हूं ये वाली बात? Yes, sir. Now, can I say that it will be 1 when x is less than -1 or x is greater than 2? Please tell me. क्योंकि ये पॉजिटिव यहीं पे है ना, तो जहां पॉजिटिव है तो सिग्नम वहां क्या ले रहा है, वैल्यू +1 ले रहा है. इज इट ओके और नॉट? प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. नाउ कैन यू से दैट it will take the value -1 when your x is lying between -1 and 2? Please do reply. हाँ जी बेटा. Yes, sir. Now can we make the graph of it? Now let us make the graph of this signum function. Consider the axis. This is your x-axis, y-axis. So I plot the points. This is your origin, and here is the point. I'm putting points here. 1. This is 2. This is somewhere -1, -2. इससे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं. ओके, पहले ये देखिए जीरोस कहाँ आ रहा है. आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर. एक तो 2 पे आपका डॉट आ जाएगा ऐसे मार्क. इज दैट ओके? और -1 पे. अब मुझे एक बात बताइए, -1 और 2 के बीच में फंक्शन ने क्या वैल्यू ली है? तो यहाँ कहीं -1 होगा. ये ग्राफ
ऐसे आ जाएगा और यहाँ दोनों पॉइंट्स पे कैविटी आ जाएगी। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी, प्लीज डू Yes, रिप्लाई। sir. और यहाँ पे +1 है, तो 2 के राइट में फंक्शन ने क्या वैल्यू ली है? 1, तो यहाँ कैविटी आ जाएगी। और देन वी हैव अगेन -1 के राइट में फंक्शन ने क्या वैल्यू ली है? 1, तो ग्राफ इधर आ जाएगा, यहाँ कैविटी आ जाएगी। इज दैट ओके? आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर बेटा। यस सर। तो घबराना नहीं है, हमने तो एक छोटी सी शुरुआत करी है तो स्टार्ट हो गया। अब देखिए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन आ रहा है सिग्नम में। अगर मान लो मेरा फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x स्क्वायर, कैन यू डिफाइन दिस फंक्शन? अच्छा देखो, थोड़ा ध्यान से समझना, सिग्नम ऑफ x आपने ऐसे डिफाइन किया, इट इज 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, सॉरी -1 आएगा, एंड 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो अब मुझे किसका साइन चेक करना पड़ेगा? x स्क्वायर। तो मुझे बताइए, x स्क्वायर तो हमेशा ही नॉन नेगेटिव फंक्शन है, इट ऑलवेज टेक्स द वैल्यू फॉर एवरी x। तो सिग्नम ऑफ x स्क्वायर क्या होना चाहिए? इट हैज ओनली 2 ब्रांचेस। क्या होंगी वो ब्रांचेस, आप ही बताइए। अगर x ग्रेड, आप ये बताइए, इट विल बी 0 व्हेन x इक्वल टू 0, and it will be always 1 when x is not equals to 0, irrespective of x is negative or positive. Is that okay or not? Are you getting this beta? Please do reply. Clear है वाली बात बेटा सबको? Yes, sir. तो what is the range of this function? It has only 2 values, that is namely 0 and 1. 0 and 1. So can we make the graph of this signum function? Yes, of course we can make it. चलो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे यार? 0 पे हमारा 0 है, तो दिस इज ओरिजिन, सो आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर। तो 0 पे 0 ले लिया। ओके, जब x नॉन जीरो है तो 1 है, तो यहाँ ये +1 वैल्यू लेके यहाँ कैविटी बना के लाइन को दोनों तरफ एक्सटेंड कर देंगे। Why I have taken the cavity? Because x is not equal to 0. Is that okay बेटा? Yes, sir. ये बात क्लियर हुई? हाँ जी बेटा। Now let us do some more problems. अगर मान लीजिए f(x) आपका दे रखा सिग्नम ऑफ x³ minus x. So how you will handle this? पहले क्या करेंगे? साइन स्कीम से हम इसके जीरोज निकाल लेते हैं। हम देखेंगे कहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है। सो कैन वी से दैट इट हैज फैक्टर लाइक दिस? प्लीज टेल मी। तो लेट अस यूज द साइन स्कीम। व्हाट आर इट्स जीरोज? -1, 0 एंड 1। अब बताइए 1 के राइट में क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. So if I start defining it, signum of x³ minus x, so how you will define this? Where it will be 0? At x equals to +-1 and 0. Is that okay? Clear है वाली बात बेटा? Yes, sir. So now where it will take +1 value, where this expression is positive. So can I write this as my x belongs to positive कहाँ आ रहा? -1 to 0 open interval, union 1 to infinity. Can we say like this? Please tell me. ये दो इंटरवल आएंगे ना बेटा, and it will take the value -1 where x belongs to -infinity to -1 union 0 to 1. Is that okay? क्या डेफिनेशन बन के तैयार हो गई? क्लियर हुआ? आप बताइए बेटा। Yes, sir.
ना कैन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इट? यस ऑफ कोर्स, इजी है, खाली हमें क्या करना है, इंटरवल्स का ही तो ध्यान रखना है। इफ आई स्टार्ट, व्हाई आई एम ड्रॉइंग दिस ग्राफ, क्योंकि कंटिन्यूटी में ये ग्राफ बड़ी हेल्प करेंगे हमें इनकी कंटिन्यूटी जानने के लिए, क्योंकि जंप कहाँ है ये सारी चीज़ें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो दिस इज द ओरिजिन, this is your x-axis and y-axis. Now I'm marking the points. Here is +1, here is -1. तो जीरोस जहाँ जहाँ वहाँ तो मैं ये डॉट्स बना देता हूँ। इज इट ओके? यही पॉइंट्स आएंगे? हाँ जी बेटा, अब जरा ध्यान से, अब मुझे बताइए 1 के राइट में ये पूरा प्लस है, तो यानी कि यहाँ अगर मैं +1 वैल्यू ले रहा हूँ तो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाएगा एंड हियर इट विल बी ए कैविटी। इज दैट ओके? क्लियर है? तो पहले +1 वाला बना लेते हैं, फिर हमारा -1 और 0 के बीच में भी ऐसे ही है, तो यहाँ दोनों पॉइंट्स पे कैविटी आएंगी। इज दैट ओके? क्लियर है यहाँ तक बात बेटा? यस। अब 0 और 1 के बीच में क्या वैल्यू ले रहा है? -1, तो यहाँ मैं बनाऊंगा तो यहाँ पर भी कैविटी बना देंगे। इज दैट ओके? और -1 के लेफ्ट में पूरा -1। सो आई होप द ग्राफ इज क्लियर। क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर हुआ ग्राफ? यस। Yes. Now my next question is, suppose my function fx is signum of log base 2x minus 1. Can you define this function? It's a very interesting function. Now let us simplify this. Try to understand that. आप अगर बात करें तो पहले ये देखिएगा, log base 2x minus 1 कहाँ 0 आएगा? इज इक्वल्स टू 1, तो x क्या आ जाएगा? 2 raised to power 1. इज दैट ओके? यस। अगर आपको याद हो, हमने log base 2x का ग्राफ बनाया था, ऐसे ग्राफ बनाया था, याद आया? यस। आप बताइए 1 के राइट में log base 2x हमेशा पॉजिटिव होगा? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x greater than 1. Is that okay or not? Please do reply. हाँ जी Yes, बेटा। sir. तो अब यहाँ इस log का 0 क्या है? 2। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अगर इस सिग्नम को मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो किस पॉइंट पे 0 है, पहले तो ये बताइए। x इक्वल टू 2 पे। x अगर मोर देन 2 होगा तो log base 2x क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, तो इट विल टेक वैल्यू 1। एंड अगर x आपका 2 से कम आएगा तो इट विल टेक नेगेटिव वैल्यू। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो खाली ये ट्रांसफॉर्मेशन थी, तो जिसके बेसिस पे हमने इसको जज किया है। ओके, नाउ one question I want to discuss. The question being asked in the JEE exam. क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है इफ सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a. Find the values of a. The question being asked in IIT JEE. इसका क्या मतलब हो गया, बता सकते हो? अगर सिग्नम +1 वैल्यू ले रहा है तो ये एक्सप्रेशन अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो सर्टेनली विल से दैट x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 मोर देन 0। अब एक बात बताइएगा, अगर आपको अच्छे से याद है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको ये चीज़ बताई थी, ये चीज़ मोर देन 0 होगी अगर अब a यहाँ पर क्या है आपका? पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट।
तो ऐसा कब हो सकता है? यानी इसके जीरोस तो नहीं है, तो जीरोस नहीं तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखिए ना, तो ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है। और अगर याद हो, मैंने 3 सिचुएशन बनाई थी ग्राफ की। अपवर्ड पैराबोला बनेगा ऐसे, अगर ये आपकी एक्स एक्सिस है तो ऐसे, तो बेसिकली यहाँ पॉजिटिव होगा। सो विल राइट डिस्क्रिमिनेंट विल बी लेस देन जीरो। इज दैट ओके? ये कंसेप्ट क्लियर है सबको भाई? हाँ जी बेटा। Yes, sir. देखो, आप वैसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। आप खुद सोचिए, ये एक्सप्रेशन मोर देन जीरो है, ठीक बात है? यहां से बात क्लियर हो रही है? अच्छा, लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अच्छा, एक बात है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है। अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो इसका मतलब इसके पास जीरोज हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. डिस्क्रिमिनेंट जीरो भी नहीं हो सकता, तो पॉसिबिलिटी क्या है? लेस देन जीरो। वैसे तो ऑब्वियस है, मैं लेकिन वैसे समझा रहा हूँ। अगर जिन्होंने क्वाड्रेटिक नहीं किया तो वो इस बात को ऐसे सोच सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बेटा? प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके, नाउ सी, अगर अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? दैट इज ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन जीरो, दैट इज a minus 2 and a plus 2 less than 0. कैन वी यूज साइन स्कीम मेथड? जैसे तो ऑब्वियस है, -2 और 2, तो यहाँ ये नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। व्हाट साइन वी नीड? तो a आपका किसके बीच में आना चाहिए? -2 और 2 के बीच में। आई होप इट इज क्लियर बेटा। क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. ओके, तो भाई ये सिग्नम फंक्शन का पार्ट था जो मैंने डिस्कस किया। अब कुछ थोड़ा सा तुम्हें मैं कुछ इनइक्वालिटीज़ के और अच्छे मुझे तुम्हें नॉलेज देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं अभी मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये काफ़ी हेल्पफुल और आपको समझ में भी आया कि हाँ सर, इनका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है क्वेश्चन सोल्व करने में। इनइक्वालिटीज़ इन्वॉल्विंग AM, GM एंड HM समझने की कोशिश करना। inequalities involving AM, GM and HM। AM तो जानते हो अर्थमेटिक मीन होता है, समझ में आ रही बात? हाँ जी बेटा। Yes, sir. ये होता है आपका अर्थमेटिक मीन। GM क्या होता है? Geometric mean. ज्योमेट्रिक मीन। और HM हार्मोनिक मीन। पहले सबको डिफाइन करते हैं। यहाँ कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस को जरा समझना। मैंने मान लिया कि लेट A एंड B आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो अर्थमेटिक मीन को हम A से डिनोट करेंगे। जानते हैं क्या होता है? A प्लस B/2। और ज्योमेट्रिक मीन को हम G से डिनोट करेंगे, जो कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ AB। HM क्या होता है? हार्मोनिक मीन। A और B के रेसिप्रोकल्स आपने लिए, उनका सम डिवाइडेड बाय 2, दैट इज नथिंग बट हाउ यू विल डिफाइन दिस? 2AB अपॉन A प्लस B। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा, डेफिनेशन क्लियर हो रही है सबको? Yes, sir. चलो, अगर डेफिनेशन क्लियर है तो कुछ यहाँ और ज्ञान देते हैं। सबसे पहले आता है, हम कहते हैं कि जो अर्थमेटिक मीन है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। कैसे होता है जरा समझना। अर्थमेटिक मीन होता है A प्लस B/2। ज्योमेट्रिक मीन अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो हम कैसे प्रूव करेंगे, मुझे ये दिखाना है, तो दोनों का डिफरेंस ले लें। A प्लस B/2 माइनस रूट AB, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। कैन वी राइट दिस एज A प्लस B माइनस 2 रूट AB अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैन वी राइट न्यूमरेटर एज अ परफेक्ट स्क्वायर?
रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा. प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो कैन वी से दैट इट इज ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी आर पॉजिटिव. प्लीज टेल मी ये कब पॉजिटिव होगा. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल ए एंड बी आर पॉजिटिव. पॉजिटिव क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर रूट डिफाइन होना चाहिए. इज दैट ओके. हाँ जी. Yes, sir. ओके. बेसिकली इनइक्वालिटी हमारी ऐसे बनेगी, ए एम विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम. अभी एच एम का भी दिखाते हैं. अब अगर मान लो मैं ज्योमेट्रिक मीन को एच एम से ज्यादा दिखा दूं तो हमारा काम हो जाएगा. प्लीज टेल मी. हाँ जी. जी एम क्या था, रूट ए बी. वट इज एच एम, 2ab अपॉन a प्लस बी. इज दैट ओके. प्लीज टेल मी. ये बात क्लियर है बेटा. हाँ जी. Yes, sir. अच्छा बताओ ए बी की पावर कितनी है यहाँ पे, 1, और पॉजिटिव है, और इसकी पावर हाफ है, तो यहाँ कितना आ जाएगा. कैन यू टेल मी. रेज टू पावर माइनस हाफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अपॉन. इज दैट ओके. कैन वी राइट दिस एज. इज दैट ओके. प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. तो ये तो ट्रू है. प्रूव क्या करना, हो गया ना. विच इज अगेन ट्रू फॉर ऑल ए एंड बी आर पॉजिटिव. तो इनइक्वालिटी ये बनती है, ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम. इज दैट ओके. प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. अच्छा अब ये बताओ इक्वलिटी कब आएगी. व्हेन विल द इक्वलिटी होल्ड्स. जब ए बी के बराबर आएगा तभी तो इक्वलिटी आएगी. आर यू गेटिंग दिस. हाँ जी. आप चेक भी कर सकते हैं, अगर ए बी के बराबर आ जाएगा तो ये क्या ये सारी इक्वलिटी नहीं आ जाएंगी. ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम. प्लीज टेल मी. यहाँ Yes, sir. अगर ए को बी के बराबर रख देंगे तो ए एम किसके बराबर आ जाएगा, जी एम के, और ये किसके बराबर आ जाएगा, एच एम के. बात क्लियर है. एक बात का ध्यान रखना है, व्हेन वी अप्लाई दिस, तो हमें किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा. हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ए और बी पॉजिटिव हो. तो मैं कुछ IIT JEE के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस पिक कर रहा हूँ इस पे, और बड़े अच्छे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं. नंबर 1 कहता प्रूव दैट. नंबर 1 x plus 1 by x is always greater than or equal to 2 if x is greater than 0, and the second part is x plus 1 by x is less than or equals to minus 2 if x is negative. We'll do both the part. Proof 1. अगर x पॉजिटिव है तो 1 by x भी पॉजिटिव है. प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. तो हम Yes, sir. तो ए एम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम. वट इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ x प्लस 1 by x अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू. वट इज ज्योमेट्रिक मीन, x इंटू 1 by x. इज इट ओके. तो यहां से तो ये बात बन गई. इज इट ओके. प्लीज टेल मी. Yes, sir. सो वी आर डन. अब हमने अब दूसरे केस में वो नेगेटिव कह रहा है. अगर वो नेगेटिव कह रहा है तो इसका मतलब तो अब नेगेटिव के लिए तो डिफाइन नहीं था. चलो आराम से देखते हैं. यहां हमने केस ले लिया x नेगेटिव है. अगर x नेगेटिव है तो माइनस x क्या है, पॉजिटिव आएगा. प्लीज टेल मी. प्लीज डू रिप्लाई. Yes, sir. तो इस वाले केस में जहां जहां x है वहां क्या रख दें हम, माइनस x रख दें. प्लीज टेल मी. Yes, sir. Yes. और मुझे क्या लिखना चाहिए, माइनस एक्स इज पॉजिटिव. अब इस इनइक्वालिटी को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू माइनस 2 एंड Yes, x sir.
सो वी आर डन और नॉट? जल्दी बताइए भाई। Yes, sir. Yes, sir. अच्छी बात है। चलिए एक और क्वेश्चन जो है अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड इन IIT JEE और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2 log base 10x minus log base x of 0.01 x is more than 1। क्वेश्चन समझ में आ गया? और क्वेश्चन जो है ये IIT JEE का क्वेश्चन है। अच्छा एक बात समझना आराम से, क्वेश्चन का हर एक पार्ट समझना बहुत जरूरी होता है। वाई वी हैव गिवन x मोर देन 1? क्योंकि log अगर बेस 10x का आप ग्राफ देखेंगे, ये ग्राफ बनता है। तो 1 जब x मोर देन 1 होगा तभी log बेस 10x पॉजिटिव होगा। प्लीज टेल मी बेटा। और मोर ओवर ये log का बेस है, और हमने क्या बोला था कि जब भी आप कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसका बेस 1 नहीं होना चाहिए और log का भी बेस 1 नहीं होना चाहिए, एंड इट हैज टू बी पॉजिटिव। इज दैट ओके और नॉट? क्वेश्चन में डोमेन का ध्यान रखा गया है या नहीं है? प्लीज डू रिप्लाई। Yes. चलो तो यहां हम थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, यहां वर्कआउट करना पड़ेगा। तो कैन वी राइट दिस एक्सप्रेशन 2 log बेस 10x एंड माइनस log बेस x। 0.01 को मैं लिख सकता हूं 1/100। प्लीज टेल मी। Yes, sir. अच्छी बात है। कैन आई राइट दिस एज log बेस x 10 to the power -2? प्लीज डू रिप्लाई। ये बात क्लियर है भाई? Yes, sir. पावर आगे आ जाएगी। अब तो क्वेश्चन हो गया भाई। अब मुझे एक चीज और बताइए, आराम से समझने वाली बात। log बेस a ऑफ b इज सेम एज 1 बाय log बेस b ऑफ a होता है। तो बताइए 2 log बेस 10 ऑफ x इज सेम एज 2 अपॉन log बेस 10 ऑफ x। प्लीज डू रिप्लाई। जल्दी बोलिए। Yes, sir. अच्छा अब आराम से समझना, 2 कॉमन ले लिया हमने। अब मुझे बताइए क्या ये क्वांटिटी पॉजिटिव है? x मोर देन 1 दे रखा है, तो log बेस 10 ऑफ x क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। प्लीज डू रिप्लाई। बोथ द क्वांटिटीज Yes. आर पॉजिटिव। Yes, So- sir. So what I will use, I will take this as my a and this as my b for the arithmetic mean greater than equal to. Can we use that inequality? Because I am looking for the least value. What do you mean by least value? That is greater than or equal to something, some constant k. So I have to determine that constant k. Are you getting this? Please tell me beta. So now we'll use arithmetic mean greater than or equal to geometric mean. Can we use this? Now let us use. So log base 10 of x plus 1 by log base 10 of x upon 2 must be greater than or equals to square root of this. Is that okay? तो बताइए ये किससे बड़ा आ गया? ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बट आपका ओरिजिनल एक्सप्रेशन इसका 2 टाइम्स है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू? 4। आगे इसकी लीस्ट वैल्यू 4 बेटा। प्लीज टेल मी। Yes, sir. या आप कह सकते हैं इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई? रेंज क्या है इसकी? 4 to infinity कह सकते हैं। अब आपने देखा AMGM से क्वेश्चन इजीली हैंडल हो गया या नहीं हो गया?
प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो देखिए क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, उनको हैंडल करना आना चाहिए। वन मोर क्वेश्चन, वी हैव अनदर क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन इन टर्म। कहता है कि लेट a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1। अच्छी बात है। कहता देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ b रेज टू पावर 4। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होना, पहले तो ये समझना, जब आपसे वो मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम का मतलब है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू सम कांस्टेंट के, यू हैव टू डिटरमाइन दिस कांस्टेंट। अगर वो मैक्सिमम पूछेगा तो लेस देन इक्वल टू सम कांस्टेंट के, तो आपको तब, तो एक बात बताओ, 1 अपॉन a टू द पावर 4 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, प्लीज डू रिप्लाई। 1 अपॉन Yes, sir. 4 ये भी पूरा पॉजिटिव है, बोथ आर पॉजिटिव क्वांटिटी। आर यू गेटिंग दिस? अगर एक को x ले लूं y, तो कैन वी से दैट कैपिटल X प्लस वाई अपॉन 2 ग्रेटर इक्वल टू रूट ऑफ, कह सकता हूं? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी Yes, बेटा। sir. तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन इज ऑल ओवर, देखो कैसे, आराम से समझना। 1 अपॉन a रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 b रेज टू पावर 4 upon 2 must be greater than or equal to, let us find the square root of this। क्या है square root, बता सकते हो? 1 upon root 2 AB. Yes, 1 upon a square b square आएगा बेटा। Are you getting this? Please tell me। Yes, sir. Sir, won't it be root 2? रूट 2 कैसे आएगा? 4 का रूट क्या आएगा? Sorry, sir. 2ab का स्क्वायर। अब मुझे बताओ ab कितना दे रखा क्वेश्चन में? 1. सो इट इज इक्वल्स टू 1, राइट? तो आपने क्या देखा? 1 अपॉन a रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 b रेज टू पावर 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। नाउ 2 इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 1। इज दैट ओके? Yes. Okay. Now I am discussing a few more questions so that you can get more practice. Now we have another question. ये कई बार स्कूल लेवल में पूछ ले जाता है, बट लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, so that's why I am asking this. The question is find the minimum value of 4 raised to power sin square x plus 4 raised to power cos square x. Are you getting this? अब आराम से समझना। Exponential function a raised to power x is always takes the positive value. Can we say that 4 raised to sin square x is strictly greater than 0? Tell me. Can we say like this or not, beta? For all x. Yes. Okay. So if I select these two quantities as a and b, so can we use the condition my arithmetic mean must be greater than or equal to geometric mean? Can we use that? Now let us utilize this. So 4 raised to power sin square x plus 4 raised to power cos square x is arithmetic mean, that is upon 2 must be greater than or equal to geometric mean. क्या आएगा geometric mean? 4 raised to power sin square x. अब बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाएंगी। ये इक्वलिटी का साइन इक्वल इसके नहीं है, ये क्वांटिटी सिंप्लीफाई होके आ रही, ध्यान रखना। आर यू गेटिंग दिस? नाउ व्हाट इज दैट? रूट 4 एंड रूट 4 इज 2, इज ओके? सो 4 रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 रेज टू पावर कॉस स्क्वायर, सॉरी, रेज टू पावर
मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4. सो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया बेटा इसका? 4. इज दैट ओके? क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. अगेन आई एम गिविंग वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. देखिए प्लीज ट्राई टू सोल्व योर एट ऑन. आई एम गिविंग यू वन प्रॉब्लम फ्रॉम द जेई एग्जाम. अभी डिस्कस भी मैं अभी करूंगा. आई एम राइटिंग द प्रॉब्लम साइमल्टेनियसली. प्लीज टेक आउट योर पेन एंड पेपर. If I say that my alpha as an angle belongs to open interval 0 to pi by 2, कहता then x square plus x plus tan square alpha upon root x square plus x is always greater than or equals to, your options are number A 2 tan alpha, 2, and option D is sec square alpha. The question being asked in IIT JEE. Now how we'll handle this type of question? पहले मुझे बताइए, this quantity square root is always a positive quantity, square root function. Please tell me. हाँ जी, Yes, sir. can we say that? Please do reply. जल्दी बोलो बेटा. Okay. What about tan square alpha? ये तो स्क्वायर हो गया तो ये भी पॉजिटिव आएगा, और वैसे भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक बेटा? सो इफ आई टेक माई ए एज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड बी एज tan square alpha over root x square plus x, can we use my inequality, that is am is greater than or equals to gm? Let us apply. I will be having root x square plus x plus tan square alpha over root upon 2 must be greater than or equals to under root of root x square plus x into tan square alpha over root x square plus x. Now this will get cancelled. Now please tell me, this is square root of tan square alpha, that is turning out to be modulus of tan alpha, but alpha lies in the first quadrant, so we'll retain it will be greater than or equal to tan alpha. बेटा, is it okay? क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ये किससे बड़ा आ जाएगा? 2 को इधर लेके आ जाएंगे तो 2 tan alpha. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो आप देखिए, हम क्वेश्चन देखिए कई बार क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को देख के हमें लगता है कि यार क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट होगा. अब आप खुद बताइए, आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे हैं? आप बताइए. क्योंकि हमने क्वेश्चन करने की एक रिदम बनाई है, तो रिदम बनाने पे क्या होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि आप कैसे हैंडल कर रहे हैं. आर यू गेटिंग दिस? ओके, another problem I am asking from IIT JEE. It is again a good problem. ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है. If a, b, c, d are positive real numbers, such that a plus b plus c plus d का सम कितना दे रखा? 2. कहता then they define is equals to a plus b into c plus d, कहता satisfies
the relation, your option A is m is greater than or equals to 0 less than equals to 1, and option B is your m is greater than or equals to 1 less than or equals to 2, and your option C is, and option D is the question being asked again in IIT JEE. How will handle this? हमें क्वेश्चन में कुछ की पार्ट्स होते हैं जिसपे हमें फोकस करना चाहिए। ABCD पॉजिटिव रियल नंबर्स दे रखे हैं, पहली चीज आई एम हाईलाइटिंग दिस, है ना बेटा? तो अगर चारों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो मुझे एक बात बताइए, हम किन क्वांटिटीज को पिक करेंगे? हम पेयर ले लेंगे, A प्लस बी इंटू सी प्लस डी का प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा नहीं आएगा? प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो सर्टेनली दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, होगा या नहीं होगा? आर यू गेटिंग दिस? ओके नाउ सी, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, AM ग्रेटर देन और इक्वल्स टू GM करते हैं। AM A प्लस बी को एक क्वांटिटी ले लिया, प्लस C प्लस डी को एक क्वांटिटी अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A प्लस बी इंटू C प्लस डी। इज दैट ओके? अब ये क्वांटिटी किसके बराबर दे रखी है? M के। सो कैन वी से दैट A प्लस बी C plus D 2 is greater than or equal to 10? Please tell me beta. Please do reply. Yes. अब A plus B plus C इनका सम कितना दे रखा है? 2 के बराबर दे रखा है, तो that is 2 upon 2 greater than or equal to 2 times. Please do reply. Yes, sir. So can we say that my M is less than or equals to 1? So can we say that M is greater than or equals to 0 and less than equals to 1? अगर स्क्वायर रूट लेस देन इक्वल टू 1 है तो डेफिनेटली आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में तो जाएगा नहीं। आर यू गेटिंग दिस माय पॉइंट? क्योंकि स्क्वायर रूट इज अ नॉन नेगेटिव फंक्शन, सो योर ऑप्शन इज ए। नाउ सी, आपने क्या देखा, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये चीज़ें छूट जाती हैं, और हम ये चीज़ें जो है ना नॉर्मल क्लासरूम में प्रोग्राम में ये चीज़ें क्या करते हैं, मोस्टली द बिग इंस्टीट्यूट्स इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, और हम लोग की हैबिट्स में ये चीज़ें नहीं रहती है।